کہ بقرہ عید کی پہچان مہمان میزبان اور پکوان۔ عید کے دوسرے روز بھی گھروں میں لذیذ پکوانوں کی تیاری، کڑاہی گوشت کے کباب، باربیکیو اور بریانی۔ خواتین نے بھی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مزیدار کباب، دہی، رائتہ بھی دسترخوان کی جان۔ ملنے ملانے، دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ عید کے دوسرے روز بھی شہریوں کا فیملیز کے ہمراہ عید انجوائے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کی فیملیز کے ہمراہ گھر گھر عید کی دعوتوں سے رونق لگ گئی۔ قرباں ہے اور اس میں تو آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا ہی سب چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے مزے کے کھانے بنائے ہیں، پلاؤ بنایا ہے، کباب اور مٹن کڑاہی، چکن کڑاہی، اور ساتھ مزے کی ان کے لیے میں نے کھیر بھی بنائی ہے۔ خواتین سجنے سنورنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے پکوان بنانے میں مصروف ہیں۔ مرد حضرات نے خواتین کو پسندیدہ پکوان کی لمبی فہرست تھما دی ہے۔ پہلا دن تو جو ہے وہ بزی ہوتا ہے قربانی میں، اور پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے۔ اب سیکنڈ ڈے جو ہے وہ اچھا دن گزر رہا ہے، ماشاءاللہ کھانے بہت اچھے بنائے ہیں میری وائف نے، اور اب ہم کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کا بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے، بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے کھانا کھانا، اس کے بعد ہم کزنس آؤٹنگ کرنے جائیں گے اور آگے فردر پلانس بنائیں گے۔ پہلے دن ہم ماموں کے گھر جاتے ہیں، پھر ہم ماما کی خالوں کے پاس جاتے ہیں، پھر ہم کزن سے مل جاتے ہیں۔ فیملی کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر فیملی کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا عید کا تہوار مزید یادگار بناتا ہے۔ بندے کو سب کچھ آنا چاہیے، تو میں ماما کے ساتھ کچن میں بھی ہیلپ کرتا ہوں، اٹس ضروری، مینڈیٹری۔ تو جب کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر رات ہماری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا دن جا رہا ہے، اب ہم انشاءاللہ کزنس کے گھر جائیں گے اور فیملی اینڈ فرینڈ سے میٹ اپ کریں گے، اینڈ دین ول انشاءاللہ پھر اور دیکھیں گے کیا ہوگا۔ زندہ دلانے لاہوری عید چھوٹی ہو یا بڑی خوب انجوائے کرتے ہیں، اور بات عید الاضحیٰ کی ہو تو فیملیز کا کہنا ہے کہ دعوت سے لطف اٹھانے کے بعد شام میں فیملی کے ہمراہ باربیکیو پارٹی سے مزہ دوبالا کریں گے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ عید قربان کا دوسرا روز عید صفائی آپریشن کے دوران 28,000 ٹن سے زائد علائشیں، جانوروں کی باقیات ٹھکانے لگائی گئیں۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر بلدیات، کمشنر لاہور اور ڈی سی نے دورے کیے۔ پہلے روز 16,000 ٹن جبکہ دوسرے روز اب تک 5,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ چاند روز زیرو ویسٹ آپریشن میں 8,000 ٹن ویسٹ اٹھایا گیا۔ وزیر بلدیات سمیت انتظامی افسران نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، عارضی کلیکشن پوائنٹس پر ورکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیع کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صفائی آپریشن جاری ہے، جس میں تمام ٹیمیں اور وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ 5,000 ٹن سے زائد جو ہے نا وہ ویسٹ اٹھائی جا چکی ہے، اور یہ آپریشن کل بھی رات 12-1 بجے تک چلتا رہا آپریشن۔ آج بھی جب تک یہ لاہور کو کلیئر نہیں کر دیا جائے گا تب تک یہ آپریشن چلتا رہے گا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ لاہور ڈویژن کے دیگر شہروں میں میونسپل اتھارٹی صفائی آپریشن پر مامور ہیں۔ چیف منسٹر کی ہدایات کے مطابق ہم کل بھی سارا دن فیلڈ میں رہے۔ میں منسٹر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ کل یہ سارا دن ہمارے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے ہماری ٹیموں کو بڑی انکریجمنٹ ملتی رہی اور ہم اچھے طریقے سے رات گئے تک کام کرتے رہے۔ سی ای او LWMC بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ شہر میں 105 عارضی کلیکشن پوائنٹ کو روزانہ کی بنیاد پر زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈسپوزل جو ہے وہ ہماری سیف سائٹس تک جو ہے وہ ہو رہا ہے، تمام کیمپس فنکشنل ہیں، تمام کلیکشن پوائنٹ فنکشنل ہیں، ٹیمز جو ہیں وہ وزٹس کر رہی ہیں۔ اس دفعہ ہم نے اسپیشل انفورسمنٹ اسکواڈز بنائے ہیں جو لاہور کے اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ 4 انفورسمنٹ ٹیمز ہیں، اس میں ہمارے انفورسمنٹ انسپیکٹرز موجود ہیں۔ افسران نے مزید کہا کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ LWMC کی ٹیموں سے تعاون کریں، جانوروں کی علائشیں فراہم کردہ ماحول دوست بیگز میں ڈال کر صفائی عملے کے حوالے کریں۔ کیمرہ مین سید مراج کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ شہریوں نے عید کے دوسرے روز سینما گھروں کا رخ کر لیا۔ خواتین اور مرد فلموں کی ٹکٹیں لینے کے لیے لائنوں میں لگ گئے۔ پاکستان کی نئی فلموں کا ٹریلر پسند آیا، اس لیے فلم دیکھنے آئے ہیں۔ مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ عید کا دوسرا روز ہے، جبکہ عید قربان میں دوسرے روز شہریوں کی جانب سے انجوائمنٹ کی جا رہی ہے۔ لطف اندوز ہونے کے لیے سنیما گھروں کا بھی رخ کر چکے ہیں۔ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، فیملیز موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا دوسرا دن کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور بقرہ عید کس طرح منائی ہے؟ بقرہ عید پہ ہمیں تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، لیکن اب ہم نے کہا گوشت کھا کے تھک گئے تھے ہم لوگ، تو ہم نے کہا چلو تھوڑا ماحول جو ہے وہ ڈفرینٹ کرتے ہیں۔ اور کل ہمارا باربیکیو تھا، تو آج ہم یہاں پہ سینما میں آئے، ہم نے کہا تھوڑا ماحول جو ہے وہ ڈفرینٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم راؤ یار دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ بالکل شہریوں کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ بتائیے گا فیملی کے ہمراہ آئی ہیں اور سنیما میں کون سی مووی دیکھ رہی ہیں اور کیسے انجوائے کر رہی ہیں؟
मूवी का नाम तो बेटे मुझे खुद नहीं पता क्या है। कैसे एंजॉय कर रही हैं यहाँ? ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईद कैसी गुजरी आप? बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी हम लोगों की। बिल्कुल शहरी की जानिब से ईद की सेलिब्रेशन की जा रही है, ईद की खुशियों में शामिल हुआ जा रहा है और ईद की खुशियाँ मनाने के लिए सिनेमा घरों में बड़ा रश लग चुका है। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। का दूसरा रोज़ मेहमानों की तवासो का रोज़ रहा। रिश्तेदारों की मुख्तलिफ अनवा के पकवानों से तवासो की गई। सीओ मॉडल बाजार शाहिद कादर के रिहाइशगाह में रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया। मज़ीद जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ जो है वो यकीनन फैमिलीज़ को इकट्ठा करने का रोज़ होता है। पहले दिन तो होता है कुर्बानी में सब मसरूफ़ होते हैं, लेकिन दूसरे दिन एक ऐसा मौका होता है जब फैमिली सब एक ही जगह पर दावत का सिलसिला शुरू होता है, मज़े मज़े के खाने बनाए जाते हैं। और यकीनन इस टाइम मैं मौजूद हूँ सीओ मॉडल बाज़ार शाहिद कादर के घर में। उन्होंने भी एक बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया है और हम उनके साथ मौजूद है। शाहिद भाई, दूसरे दिन सबसे ज़्यादा होता है कि फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, और तीसरा दिन होता है ससुरालियों का दिन। तो आज आप दूसरे रोज़ कैसे एंजॉय कर रहे हैं? आज हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये सारे मेहमान जो आए हुए हैं, ये बड़े कीमती मेहमान हैं। इनको एक ही टेबल पे बिठाया है और मुख्तलिफ किस्म के खाने बनवाए हैं। और आप यकीन करें कि इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। ये हाजी साहब इतने मज़े की बातें कर रहे हैं। और आप जब गोश्त करते हैं ना, जब कुर्बानी करते हैं, तो पहले गरीबों का ख्याल रखें। गरीबों का गोश्त बांटने के बाद, जो मुस्तहिक़ अफराद है उनका गोश्त बांटने के बाद फिर अपने घर रखें। ठीक है जी, यकीनन फिर ईद का दूसरा दिन हो और सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों तो फिर कैसे मुमकिन है कि उसमें इंजॉय ना हो और कोई मूवीज़ देखता है, कोई आपस में बैठ के बातें। ख़वातीन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं। अच्छा मैम, ये वाहिद दिन होता है जिसमें सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन ख़वातीन का बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने सारे खाने खुद ही बनाए। हाँ जी, खुद ही बनाते हैं हम लोग ना। दूसरे दिन जो है ना, हम लोग अपने घर में ज़्यादा इत्माम करते हैं कि फैमिली बैठ के तो सब मिल के खाना खाएं। और तीसरे दिन जो है वो हमारे गेस्ट आते हैं। ठीक है जी, यकीनन मुनफरिद चीज़ें हैं और इस तरह की जो डिशेज़ हैं वो स्पेशल किसी ख़ास दिन में ही बनाई जाती हैं। कुछ और लोग भी खाने में मसरूफ़ हैं, उनका भी हम थोड़ा सा खाने को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, कितना मज़ा आ रहा है स्पेशल दिन में? बहुत टेस्टी खाना है। मटन कढ़ाई फेवरेट है और बहुत अच्छी बनी हुई है। वो टेस्ट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन जी, जब सब फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं तो यकीनन जहाँ पर खाने से बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, वहीं पर जो हैं वो हल्ला गुल्ला भी किया जाता है, मूवीज़ का भी प्लान किया जाता है। और ईद का दूसरा रोज़ जो है वो फैमिलीज़ का रोज़ है और इसको आपने देखा कि सब बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहरियों के साथ साथ सियासतदान भी ईद के दूसरे रोज़ खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ रहे। ख्वाजा अहमद हसान ने लीगी रहनुमाओं कारकुनों से ईद मिली। शहरियों के साथ साथ सियासतदान भी ईद के दूसरे रोज़ खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ रहे। ख्वाजा अहमद हसान ने लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से ईद मिली। सीनियर लीगी रहनुमाओं मियाँ वकास चौधरी अब्दुल रहमान ने ख्वाजा अहमद हसान को रवायती पगड़ी पहनाई। ताजपुरा में रुकन कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादिर ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। चीफ कोऑर्डिनेटर NA 121 अहमद सईद, लीगी रहनुमा सफ़ीर शाह, मियाँ हाजी अशरफ, मियाँ ज़ुबैर, अफजाल बशीर भी शरीक हुए। सुन्नत इब्राहिमी है तो तमाम मुसलमान बड़े जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। तो बीइंग ए मुस्लिम लीगी पार्टी की तरफ से ये हिदायत भी थी कि अपने वर्कर्स के साथ रब्ता किया जाए। तो ये है कि आज इंशाअल्लाह ताला NA 1-to-1 के सिलसिला में तमाम दोस्तों को इनवाइट किया है। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लुद्धर ने डेरे पर कुर्बानी की और गरीबों में गोश्त तकसीम किया। यासीन गुज्जर, बऊ अस्कर, खुशनूद आलम, इरफान मालिया, हाजी अब्दुल्ला, मुनव्वर रहमानी, मोहम्मद नायाब, मोहम्मद जावेद, शाहिद कोठा मालिया समेत अहले हल्का ने शिरकत की। वक्फे से दोस्त अहबाब भी मुलाकातें करने आते रहे। जोहर टाउन में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जेर एहतमाम दावत आमदीद शहरियों को बीफ कौरमा, मटन कौरमा और मीठे चावलों के साथ तवाज़े की गई। लीगी रहनुमा खालिद नेक गुज्जर, चौधरी मोहम्मद सरवर, कारी मोहम्मद याकूब शेख समेत दीगर ने शिरकत की। ये हमारा एक सिलसिला है जो कि ईद कुर्बान में हमने दावत आम के नाम से शुरू कर रखा है। तो उसी सिलसिले में आज जोहर टाउन में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकामी लोग हैं, इर्दा गिर्द के जमात के कारकुनान हैं और दीगर जो अहबाब हैं, सब के लिए एक खुले दस्तरखान का एहतमाम किया गया है। नज़ीर चौक बागड़िया में रुकन कौमी असम्बली बीबी वडेरी ने मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया। बीबी वडेरी का कहना था कि ईद की खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने से दुबाला हो जाती हैं। अवाम की परेशानियों का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। सुन्नत इब्राहिमी हमें इसारे कुर्बानी का दर्स देता है
तो इसलिए आइए आज मिल्क बांट कर खाएं, गरीबों के साथ मिलकर खाएं, इनका ख्याल रखें, चाहे गोश्त हो, चाहे खाना हो, चाहे रोटी हो। सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी नईम शहजाद भट्टी ने अहले हल्का के साथ ईद मनाई। डेरा गवाहा गांव में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की। अहले हल्का से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलूच का बारबेक्यू पार्टी का अहतमाम, मेहमानों की सीख कबाब बीफ पुलाव से तवाज़ो की गई। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलूच की जानिब से बारबेक्यू पार्टी का अहतमाम किया गया। पीपी अमीर सैयद मुस्तकीम मोइद, जहांगीर इस्तार, अहमद उमैर, हाफिज रिजवान, इफ्तिखार चौहान और दीगर भी मौजूद थे। अहमद सलमान बलूच ने जिम्मेदारान इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर के एजाज़ में बारबेक्यू का अहतमाम किया। मेहमानों की सीख कबाब बीफ पुलाव से तवाज़ो की गई। हमारे तमाम दोस्त जो है कि आ भी गए हुए हैं, कुछ आ भी रहे हैं। ये हर साल का हमारा इसी हवाले से इवेंट होता है कि ये वो हमारे दोस्त हैं कि जो इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स पे काम भी कर रहे होते हैं। आपने देखा कि बड़ी ईद पर बड़ा मकसद हमारे सामने था कि हम इस इलाके के हर उस फ़र्द तक पहुँचें कि जो इस आस में होता है कि पूरा साल वो गोश्त के खाने से महरूम रहता है। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह झलो में ईद के दूसरे दिन तकरीब, आज पंजाब ने स्कूल की एक और इमारत बनाने का वादा कर लिया। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह झलो में ईद के दूसरे दिन के हवाले से तकरीब हुई। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खसूसी तौर पर शरीक हुए। समाजी शख्सियत डॉक्टर फरजाना काज़मी, नौशीन नकवी, मोहम्मद ताहिर भट्टी, सबा सादिक, असद अली शरीक हुए। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस भी पेश किया। आज डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि इन बच्चों को तालीम, खाना और एतमाद देना बहुत अच्छा अमल है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। इसासी काउंसिल जनरल जलाल सलाहुद्दीन भी मौजूद। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज शरीफ और स्पेन सफ़ीर ने मुलाकात की। इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई, लाइव स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर किया गया। इसासी काउंसिल जनरल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन भी मुलाकात में मौजूद थे। हिस्पानी सफ़ीर ने पंजाब में मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चुंगी अमर सद्दू पार्क टाउन के मकीन ट्रांसफार्मर की खराबी के खिलाफ सरापा एहतजाज। आए रोज़ ट्रांसफार्मर के फटने से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं, नारेबाजी भी की। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुंगी अमर सद्दू पार्क टाउन में, जहाँ पर इलाका मकीन जो है वो लेस्को के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। जी मुझे बताइएगा कि आप लेस्को के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हैं? लेस्को वाले जो है ना, कल से हमारी सुबह से लाइट गई हुई थी। कल सारा दिन कंप्लेनें करते रहे। रात को 10 बजे आई गाड़ी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हसल पैलेट स्कूल के पास जो ट्रांसफार्मर है उसके साथ आगे एक मिनी ट्रांसफार्मर रखा है, वो ख़राब हो गया है। उसका सारा लोड इसी पर डाल दिया है। वो सुबह 6 बजे से 700 कंप्लेनें की हैं हम लोगों ने। तो रात को 10-11 बजे आई है क्रेन, वो टेम्परेरी करके चले गए हैं। दूसरा को फॉल्ट वाला जो है ना ट्रांसफार्मर इधर इंस्टॉल करके चले गए हैं। तो आज रात 6 बजे फिर लाइट चली गई है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि यहाँ पर चूंकि जो है वो ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा है, जबकि लेस्को इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो है वो दूसरा लगाया जाए, जबकि मुतबादिल उसके ट्रांसफार्मर लगने से यहाँ पर जो बिजली का लोड है ट्रांसफार्मर पर वो कम हो सकेगा और यूँ जो उनका मसला है वो हल हो सकेगा। इसलिए उनका इंतजामिया से अपील करते हुए कहना यही है कि ट्रांसफार्मर जो आए रोज़ फट रहा है उसका सदेबाब किया जाए, यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। और यूँ लाइट जो है वो रोज़ाना जो चली जाती है, जिस वजह से यहाँ पर इलाका मकीन परेशान होते हैं, वो उस परेशानी से छुटकारा हासिल। इब्राहिम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।